Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokul Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawhar. So friends, I welcome you all for the FIBC Foundation course semester 2, chapter of concept of stress and conflicts. So friends, in our last lecture we discussed about understanding the stress and conflict. So we discussed about what is stress and what are the different causes of stress like financial problems, workplace stress, life change, health issues and relationship. Similarly, we also discussed about the definition of conflict and what are the different causes for conflicts. So there are competition, unhappiness, clash of beliefs, ethnic differences and threatening are the various causes for conflicts. Then the third section was about aggression. So what is aggression and what are its different causes, that also we discuss in our last lecture. So today we will discuss about how to manage all these type of stress and conflicts in contemporary society. Okay, so we have already discussed about the definition of stress, that our life is full of tensions, there are many difficulties and these difficulties are unavoidable and therefore it is very difficult for us to come out of the stress. But only thing we can do is we can find out some methods to reduce this stress, and this is called as stress management. Okay, so what are the different various ways by which we can manage the stress? So the very first method is relax your body. So relaxation techniques such as yoga, meditation, deep breathing activities, this will give a relaxation response to our body. This will calm our mind, and if we practice this regularly, then slowly we will come out of our stress. The stress level will decrease and we will feel happiness and joy. So therefore yoga meditation is very important for relaxation of our body as well as our mind. Second one is exercise. So regular physical exercise is very important. So it can be again in the form of yoga or some pilot classes, pilates, or we can also join some type of gyms. So this way the exercise or walking, it can help you to reduce your stress. Third one is healthy diet. So eating healthy whole food and avoiding sugary, fatty as well as oil food is very important for our day to day necessary of our food. Then the next thing we can do for managing the stress is enough sleep, which is the very essential part of our life. But slowly, because of our work, our busy schedule, the sleeping hours are reduced, and it is also one cause for increased stress. So therefore sleep of 8 to 9 hours or 7 to 8 hours is very important. Next one is socialization. So many people are able to relax when they become a part of society, when they go to their friends. Also we should trust our friends and we should take out some time to discuss with our friends and family. This is also a theory which can calm us and we can get a relaxed mind. So therefore socialization is very important to release the stress. Next one is time management. Very important, that because of our poor time management we feel a lot of stress in our day to day life activities. So managing our workplace, our day to day routine, our schedule and our different goal is very difficult, and therefore time management is very important. Learning how to manage the appointment as well as our daily schedule is very important. So we should organize our time, organize our work, and then we can have a proper time management for a stress free life. Next one is also very important, that is positive attitude. It is very important to have a positive attitude. If we have positive thoughts,
then the negative thoughts will come out of our mind, and positive thinking will also make yourself as well as the surrounding also positive, and it will inspire the people. Also it will elevate your mood, and slowly the stress will go away and you will have a peaceful life. So these are the different methods by which we can manage the stress and conflicts in our day to day life. Then we also have that why actually we feel the stress क्यों आता है हम लोगों को, and how to avoid that stress. Okay, so stress and उसका थोड़ा सा अगला पार्ट है, that is conflicts. So conflict is also a condition where we feel a lot of stress on our mind. So various physiological studies are there which are carried out and which have shown that conflicts are usually classified according to the positive or negative values of perspective choice. बहुत सारे बार हमारा गलत अप्रोच के वजह से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करते हैं. सो देयरफॉर we should have a positive approach towards the conflicts also. So what we can do, actually very first thing is that there is a model of थॉमस क्लीमन. ये थॉमस क्लीमन मॉडल हमें सिखाता है कि हाउ टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स. सो वेरी फर्स्ट इज़ आवर अप्रोच. हम लोग किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी शुड हैव अवॉइडेंस. अगर हम लोगों को पॉसिबल है तो हम लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, उनसे दूर चले जाना चाहिए. ओके, जैसे कि देर इज़ चॉइस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग. जैसे हम लोगों को दो कॉलेजेस के बीच चॉइस मिल सकती है, दो अलग अलग बाइक के साथ चॉइस मिल सकती है ना. कौन सी बाइक चाहिए, यू कैन चूज़ वन. या फिर कॉलेज की तरफ आने वाले दो रास्ते हो सकते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज चूज़ जो आसान तरीका है, आसान रास्ता है ना, शॉर्टकट्स. सो सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ देखने के लिए भी हम लोगों को आसान तरीका देखना चाहिए. फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट. पहले तो उससे दूर चले जाओ, और अगर वो अनअवॉइडेबल है, उससे दूर नहीं जा सकते, देन वी शुड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, सो देयरफॉर this will make easy to face the conflict. Then second thing is that कि निगेटिव और ज़्यादा निगेटिव दो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसमें से जो कम निगेटिव वाला कॉन्फ्लिक्ट है उसे आप फेस करो, है ना. तो कम से कम आप स्ट्रेसफुल हो जाओगे, आपका जो पॉजिटिव माइंड है वो भी अच्छा रहेगा, एंड दिस वे वी कैन ईजीली फेस द कॉन्फ्लिक्ट्स. So actually what the Thomas Kilmann model says that it provides a profile of individual and teams that can help us to handling the conflicts. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, we should avoid the conflict. So avoidance or postponing the conflict by ignoring it or changing the subject. अगर झगड़ा हो रहा है, पहले तो उसको इग्नोर करो या फिर टॉपिक चेंज करो. सो दिस वे अवॉइडेंस कैन बी यूजफुल एज अ टेम्पररी सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट. सो दिस वे एक तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, या उसके लिए टॉपिक चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, और उसकी जो सिवियरिटी है उसको कम कर सकते हैं. देन द सेकंड मेथड इज़ कोलैबोरेशन. ओके, सो इफ़ वी वर्क टुगेदर, then it will be a mutual benefit for each other. So while thinking about the Thomas Kilmann model, collaboration of work is very important to avoid the conflicts. So collaboration is also very important for time management. Then जो भी गलत हो रहा है, चीज़ें ठीक से नहीं हो रही है, वो एक दूसरे के साथ काम करने की वजह से ठीक से हो सकती है. देन आवर परसेप्शन ऑल्सो चेंजेस. एक दूसरे के साथ काम करने की वजह से हम लोग एक दूसरे को हेल्प करना सीखते हैं, एक दूसरे की मदद लेना सीखते हैं, एंड देयरफॉर हम लोग एक दूसरे के इमोशंस के बारे में केयर करना भी सीखते हैं.
So therefore it is very important to work in a group to avoid the conflicts. If we are in the other situation, हम लोग समझ सकते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है. So this way collaborative work is very very important to avoid the conflicts. Then the third one is compromise. सी कॉम्प्रोमाइज़ करना, दूसरों के साथ एडजस्ट करना, कमी चीज़ों में पूरी करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो if we compromise with the person as well as with the problem, slowly the conflicts also get reduced. Okay, so the aim of conflict resolution is बेटर वे ऑफ एग्रीमेंट. अगर हम दो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ कंपटीशन. देखो, किसी चीज़ को हम लोगों को एज अ कंपटीशन नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिंपल वे में लेना है, कॉम्पिटिशन्स अवॉइड करने हैं. बिकॉज वेन एवर देर इज़ कॉम्पिटिशन देर इज़ स्ट्रेस, है ना. तो हम लोगों को हर एक चीज़ को एज अ कंपटीशन नहीं देखना है. कौन पहले कॉलेज में पहुंचेगा, किसको अच्छे नंबर मिलेंगे, कौन फर्स्ट आएगा, इस तरीके से छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन्स है डे टू डे लाइफ में, उन्हें अवॉइड करना है. इफ़ यू अवॉइड दैट, देन इट लाइफ बिकम वेरी ईजी एंड इट इज़ यूजफुल व्हेन यू अचीव स्मॉल स्मॉल गोल्स. एकदम बड़े गोल के बारे में मत सोचो, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट बिगर गोल्स. सो पहले छोटी छोटी चीज़ें करो और हर एक चीज़ में कंपटीशन करना अवॉइड करो. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प अस टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स. द नेक्स्ट वन इज़ एकोमोडेशन. एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट कर लेना, एक दूसरों के साथ एडजस्ट कर लेना. सो वी शुड नो व्हाट आर आवर एक्चुअल नीड्स एंड व्हाट आर आवर विशेष. देखो, हमारी ज़रूरतें बहुत कम होती है, लेकिन अपनी इच्छाएं ज़्यादा होती है, अपनी विशेष ज़्यादा होती है, और उस वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स या कंपटीशन क्रिएट हो जाते हैं. सो अगर हमारी बेसिक जो नीड्स है वो ज़रूरत के हिसाब से पूरी हो जाए, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू फुलफिल योर विश. हमेशा अपनी ज़रूरतों को ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरों की ज़रूरतों को भी ध्यान देना चाहिए. सो दिस वे, सपोज यू एकोमोडेट इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, particular people, then slowly there will be no reason for conflicts, or this way we can avoid the conflict situation. So these are some techniques by which we can avoid the conflicts. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मास्लोज थियोरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है ना. हम क्या है, कौन है, हम लोग किस तरीके के पर्सन है, और हम लोग क्या कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज मास्लोज थियोरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो दिस मास्लोज थियोरी वॉज गिवन इन 1943. ओके, एंड इट इज़ एक्चुअली अ थियोरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. सो मास्लो की जो थियोरी है वो हमें बताती है कि व्हाट आर आवर एक्चुअल नीड्स. हमारी डे टू डे लाइफ में नीड्स क्या है. सो वेरी फर्स्ट इज़ आवर फिज़िकल नीड्स. फिज़िकल नीड्स कौन कौन सी होती है? एयर, वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. दीज आर आवर फर्स्ट नीड्स. मतलब पानी, खाना, है ना, शेल्टर, ये सब चीज़ें जो हमारे लाइफ में फर्स्ट प्रेफरेंस की तरह से आती है, दीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट फिजिकल नीड्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल दिस टाइप ऑफ नीड्स. सो वंस an individual satisfied his basic need, then he can go to the next level of need. तो ये जो फर्स्ट नीड्स है, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर, क्लोथिंग, ये बहुत ज़रूरी है. उन्हें हर एक इंसान को फुलफ़िल करना देना चाहिए, फुलफ़िल करने का मौका भी देना चाहिए. देन द सेकंड वन इज़ कॉल्ड एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लाइफ में हमारी सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे हम लोगों को एयर, वाटर, शेल्टर मिल गया, उसके बाद सिक्योरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो इट कैन बी सिक्योरिटी ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ आवर लविंग पीपल. फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारी जॉब, उसके साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मतलब हमारा पैसा, हमारी फैमिली, हमारी प्रॉपर्टी, इन सब की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है. So therefore after physical needs the security needs are very very important. And then there is third need which is called as esteem needs. So esteem needs are the one where our loving people or belonging people comes. तो हम क्या है, वी आर अ सोशल पर्सन, हम लोग अकेले नहीं रह सकते. सो देयर फोर ऑल ह्यूमन्स नीड फैमिली एज वेल एज द सोसाइटी. सो द एस्टीम नीड्स रिप्रेजेंट अवर फैमिली as well as it also represent our self confidence. ओके, हमारी अलग अलग चीज़ों में मास्टरी, हमारे अचीवमेंट्स एंड आवर इंडिपेंडेंस, दीज ऑल आर कॉल्ड एज एस्टीम नीड्स. तो एक बार अगर ये तीनों नीड्स कंप्लीट हो जाती है, फिजिकल नीड, सिक्योरिटी एंड एस्टीम नीड्स, देन एक्चुअली देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी अदर थिंग इन आवर लाइफ. लेकिन हम लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वी लॉस आवर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हमें सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ माय मोरालिटी, क्रिएटिविटी, ओके, हाउ आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. मैं किसी चीज़ के बारे में गलत तो नहीं सोचता, किसी दूसरे का जो थिंकिंग है उसे कंसिडर नहीं करता. सो दिस वे दिस डिफरेंट क्वेश्चन लीड्स अस टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो एक बार हमारी ये तीनों नीड कंप्लीट हो जाए, देन वी शुड थिंक पॉजिटिवली टूवर्ड आवर सेल्फ एज वेल एज द सोसाइटी. तो दिस इज़ कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन. ओके, तो जो इंसान खुद के बारे में या फिर खुद की पर्सनालिटी के बारे में सोचता है, वो हमेशा सोचता है कि एक बार मेरी ये तीनों नीड फुलफिल हो जाए, फिजिकल, सिक्योरिटी वाइज एंड एस्टीम नीड्स, देन आई शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दी अदर्स. ओके, अदर मतलब सोसाइटी, एनिमल, हमारा एनवायरनमेंट, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए. देयर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव क्वालिटीज़ एंड वी शुड नॉट ब्लेम द अदर पीपल फॉर एनी लॉस. हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए. देन वी शुड फोकस आवर प्रॉब्लम. हमेशा अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पहले सोचना चाहिए एंड देन वी शुड फिक्स देम कि मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और फिर स्लोली उसे सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. देन वी शुड ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज द सोशल हेल्थ. मतलब लोगों के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है, और पूरे सोसाइटी की हेल्थ हमें प्रिजर्व करनी है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. और सिमिलरली हमारे अंदर जो स्किल्स है, हमारी अलग अलग क्वालिटी है, उन्हें एनहांस करना है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमैनिटी को डेवलप करना, इंसानियत को डेवलप करना. इफ़ यू इंक्रीज दैट और इफ़ यू डेवलप द ह्यूमैनिटी, देन it is actual self actualization and then there will be no need of conflicts or stress. एक बार अगर हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दें तो फिर हम लोगों को स्ट्रेस फील नहीं होता है, कंपटीशन फील नहीं होती है, पूरी दुनिया अपनी लगती है एंड देन फाइनली देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. तो इस तरीके से जो आदमी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होता है, पूरी तरह से सोच विचार करके काम करता है, वो हमेशा 3 टाइप के रिस्पॉन्सेस देता है. फर्स्ट इज़ इमोशनल रिस्पॉन्स. तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है तो हमें उसके बारे में इमोशनली सोचना चाहिए कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, है ना, मुझे भी परेशानी होती. सो दिस वे वी कैन थिंक ऑलवेज पॉजिटिवली एंड इमोशनली. देन ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेसेस शुड बी सॉल्व कॉग्निटिव मैनर. तो सेकंड जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस. हमेशा दिमाग से भी काम लेना चाहिए. ओके, एंड देन वी कैन हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अदर्स एंड वी कैन गिव कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस टू द अदर्स बिहेवियर्स. मतलब दूसरा क्या कर रहा है उसको हम लोग इमोशनली एज वेल एज कॉग्निटिव रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं. एंड फाइनली देर इज़ फिजिकल रिस्पॉन्स. हमारी बॉडी फटाक से फिज़िकल रिस्पॉन्स दे देती है ना, तो उसे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए. वी शुड नॉट हेट ईच अदर, वी शुड लव ईच अदर.
हमेशा दूसरों के बारे में और सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए. So once you learn self actualization, a person becomes a self independent, or this way there is no reason for any type of stress and conflicts. Okay, so this is all about stress management and conflicts. So here we have covered our all syllabus. Now I wish all the best for your exams, and till that you take care and stay safe. Thank you.